नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका स्लम डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से चिटगुप्पा में 545 घर किए गए मंजूर। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने इस योजना का किया उद्घाटन। कर्नाटका के राज्य सरकार करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की घोषणा। कर्नाटका के नक्शे कदम पर कांग्रेस की तेलंगाना इकाई विधानसभा चुनाव के दावेदारों से लेगी 50,000 शुल्क। श्रमदान करके लोगों से भीख मंगवाने का पर्दाफाश। हैदराबाद में 23 भिखारी पकड़े गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सोनम वांगचुक से मुलाकात, युवाओं से करेंगे संवाद। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गांव पर हथियारबंद बदमाशों का हमला, कुकी समुदाय के 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका स्लम डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से भास्कर नगर चिटगुप्पा में 545 घर मंजूर किए गए, जिसमें गुरुवार को भास्कर नगर में भूमि पूजा कर इस योजना का हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सिद्धू पाटिल ने कहा कि गांव में जो लोग गरीब हैं, उनको देखकर इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाए और उन्हें घर बनाकर दे। इससे आने वाले दिनों में चिटगुप्पा को एक सुंदर शहर बनाने का इरादा है और कहा कि इस योजना के लिए किसी भी टीएमसी सदस्य को 1 पैसा न दे। इस संबंध में मीडिया से बात कर सारी जानकारी विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने दी। इस अवसर पर काउंसलर शुभा कुंभार, रेवन्नप्पा हगर, अनिल जोशी, मल्लिकार्जुन पाटिल, काउंसलर सुभाष कुंभार, स्लम एरिया एईई श्रीधर, जेई लक्ष्मीकांत व कई दूसरे लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಏನು 545 ಮನೆಗಳಿದೆ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು 300 ಆಗ್ತು, 250 ಆಗ್ತು, ಮತ್ತು ಜಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಯವರ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 6-7 ಎಕರೆ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಮನೆಗಳು ಮ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾ, ಏನು ಸ್ಲಮ್ಗಳು 7 ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ, 7 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಗಲ್ಲಿಗಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತು, 500 ಮನೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ, 545 ಮನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್. SC ST ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಎಷ್ಟು SC ST 120, ಮಿಕ್ಕಿದು 425 ಮನೆಗಳು ಜನರಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕೆರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಅನ್ವಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಜನರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಏನು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೆಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು CS ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎದುರು ಸಲಕಿಂದು ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಆಗ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ವರದಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆ ನೋಡಿದರು. ನಾನು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಸರ್, ಸುಮಾರು 11:15 ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ದಾಗೆ ಬೀದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು DHOರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಓಣಿಯ ಜನತೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದಿನದ ಒಂದು ಕನಸು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಗ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ
ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ NOC ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ನಂಬರೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹೊಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಲಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ರೋಡು, ನೀರು, ಗಾರ್ಡನು, CS ಸೈಟು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತು ಇದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಜನರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮನೆಯದು. ಆದರೂ ಕೂಡ 50 ಜನರಿಗೆ NOC ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಂಬರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಯೋಗ ಕರೆಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಣ. ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಶು ಇದಕ್ಕೆ ಸಲಕ್ಕಿಂದು ಕೂಡ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ COರ್ಗೂ ಕೂಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ COರ್ ಹತ್ರ ಇವತ್ತೇನು ಲೇಔಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. CS ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ CS ಸೈಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಚುಡುಗುಪ್ಪ ಏನು ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ಮ್ಯಾಕ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದು KBದು AW ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರೆಲ್ಲ ಅನಕಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. ಅದೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮಾಡೋಣ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲಸ. ಧನ್ಯವಾದ. कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने का निर्णय लिया है। बता दें, देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू की जानी है। केंद्र सरकार ने साल 2020 में इसकी घोषणा की थी और 2021 में कर्नाटका देश का पहला ऐसा राज्य बना था जहां यह लागू की गई थी। तत्कालीन बीजेपी के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने NEP लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। कर्नाटका के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में NEP को वापस लेने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने का वादा किया था। हम उस वादे के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे पूछा कि कर्नाटका में सबसे पहले NEP लागू करने की इतनी जल्दी क्यों थी, गुजरात और उत्तर प्रदेश में NEP लागू क्यों नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटका की शिक्षा प्रणाली देश के लिए एक मॉडल है। यही कारण है कि बेंगलुरु आज IT हब है। हमारी अच्छी शिक्षा प्रणाली के कारण ही राज्य के कई लोग विदेशों में अच्छे पदों पर हैं। तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। तेलंगाना कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगी। यह जानकारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को दी। कर्नाटका कांग्रेस मॉडल के नक्शे कदम पर चलते हुए तेलंगाना इकाई SC ST और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 25,000 रूपये और बाकी के लिए 50,000 रूपये लेगी। गौरतलब है कि इस साल कर्नाटका में मई में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पार्टी ने सामान्य वर्ग के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन और अन्य दस्तावेजों के साथ 2 लाख रूपये का शुल्क लिया, जबकि SC ST आवेदकों के लिए 1 लाख रूपये था। पैनल के सदस्यों में से एक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनने के तौर तरीके तैयार करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उप समिति का गठन किया। उन्होंने बताया कि आज दोपहर तक उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आवश्यक फॉर्म अपलोड कर देंगे। आवेदकों को फॉर्म भरना होगा और 25 अगस्त से पहले DD 50,000 रूपये या 25,000 रूपये के साथ जमा करना होगा। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने एक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर एक भिखारी और उसके लिए भीख मांगने वालों को पकड़ा है। पुलिस ने एक तरह से भीख मंगवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कल हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट और KBR पार्क से 23 भिखारियों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में बैगिंग माफिया अनिल पवार भी शामिल हैं,
जो भीख मांगने का काम करता है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अनिल अलग अलग जगहों से बूढ़ों, विधवाओं, विकलांगों और बच्चों को शहर के सिग्नलों पर भीख मांगने के लिए लाता है। अनिल पवार उनसे हर दिन 450 से 6000 रुपए की वसूली करता था, जबकि उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन 200 रुपए मजदूरी के रूप में दिए जाते थे। भिखारियों का एक माफिया भी है। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे लोगों के कृत्यों के कारण भिक्षा मांगने वाले वास्तविक जरूरतमंद लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लोग इन जरूरतमंद लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। पुलिस ने बताया कि आज मुंबई में एक 35 वर्षीय महिला को कुत्ते पर एसिड फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घटना बुधवार को हुई। मुंबई के मालाड मालवानी में 35 साल की एक महिला के खिलाफ धारा 429 भादवी के साथ 11(1)(a) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल महिला ने अपनी बिल्डिंग में रहने वाले एक कुत्ते के ऊपर एसिड फेंक दिया था, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया है। महिला की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर मालवानी पुलिस ने कार्यवाही की है। महिला इसलिए परेशान थी क्योंकि ब्राउनी नाम का कुत्ता उसकी बिल्ली के साथ खेलता रहता था। उसने कुत्ते के मालिक को उसकी बिल्ली से दूर रखने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उसके अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे नाराज होकर आरोपी महिला ने 16 अगस्त की रात करीब 12 बजे उस कुत्ते पर एसिड डाल दिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं से मिलने के साथ साथ लद्दाख के अलग अलग जगहों पर जाकर युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों ने बताया कि लेह में राहुल अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में शुक्रवार को होने वाले एक मिनी फुटबॉल मैच को देखने जाएंगे। बाद में वह रिटायर्ड
सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। बोर्ड के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी सोनम वांगचुक से भी मिलेंगे, जिन्होंने लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत लाने की मांग करते हुए सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस की शुरुआत में 5 दिवसीय उपवास रखा था। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इनोवेटर से जलवायु कार्यकर्ता बने वांगचुक लद्दाख की सबसे लोकप्रिय आवाजों में से एक हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में मुख्य किरदार को प्रेरित करने के बाद राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने वैसे तो तमाम प्रकार के मिसाइल सिस्टम विकसित किए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी मिसाइल तैयार हो गई है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते हैं। असल में इस मिसाइल का नाम है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र MK2 है, जो हवा से हवा में मारती है और यह स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल के माध्यम से भारतीय वायुसेना के विमान दुश्मन के विमानन को हवा में 160 किलोमीटर दूर ही मार गिराएंगे। भारत का चंद्रयान 3 स्पेस में कमाल पर कमाल कर रहा है। चांद पर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 ने स्पेस से एक वीडियो भेजी है। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि चंद्रयान 3 चांद के सतह के काफी नजदीक पहुंच चुका है। इस वीडियो को इसरो ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें चंद्रयान 3 को चांद के काफी करीब देखा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गुरुवार को बताया कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो चुके हैं। इसके बाद चंद्रयान तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि चाहे एक पक्ष हो या दूसरा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जहां भी हेट स्पीच होगी उससे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया। हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट नफरत फैलाने वाले भाषण और नू सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जहां एक याचिका में विरोध रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है, वहीं दूसरी याचिका में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की शिकायत की गई है। एक वकील ने कहा, केरल में IUML द्वारा एक रैली की गई थी और उस दिन उन्होंने हिंदुओं की हत्या के संबंध में नारे लगाए थे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, मैं स्पष्ट हूं कि चाहे एक पक्ष हो या दूसरा, उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और जहां भी नफरती भाषण होगा उनसे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार सुबह भड़की ताजा हिंसा के दौरान 3 कुकी लोगों की मौत हो गई। उखरुल के पुलिस अधीक्षक लिंगशेम वाशुम ने स्क्रॉल को बताया कि यह घटना थवई कुकी गांव में सुबह करीब 4:30 बजे हुई। स्क्रॉल रिपोर्ट के मुताबिक वाशुम ने कहा, यह एक अकारण और जानबूझकर किया गया हमला था। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमें संदेह है कि घाटी की ओर से हथियारबंद बदमाशों ने पहाड़ियों में घुसपैठ की और उन पर हमला किया। मृतक स्वयंसेवक थे जो गांव की रखवाली कर रहे थे। बता दें कि थवई कुकी कामजोंग रेवेन्यू जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यह उखरुल जिले के पुलिस क्षेत्राधिकार में आता है। यह गांव नगा बहुल उखरुल जिले और मैते बहुल इम्फाल पूर्वी जिले के बीच की सीमा पर स्थित है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अधिकारी मरने वालों के नामों की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि प्रशासन द्वारा नई फिल्म नीति शुरू करने के बाद यहां 300 से अधिक फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग हुई है। आगामी टीवी धारावाहिक पश्मीना के पहले दिन की शूटिंग का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में फिर से उभर रहा है। मनोज सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा, 2 साल पहले सभी हितधारकों के साथ चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक नई फिल्म नीति शुरू की गई थी। अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर फिल्मों एवं धारावाहिकों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में फिर से उभर रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिल्म संबंधी गतिविधियों से यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। कोची पुलिस ने एक 23 वर्षीय व्यक्ति को बुर्का पहनकर महिला के रूप में कपड़े पहनने और महिला शौचालय से वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना मंगलवार शाम एक मशहूर मॉल में हुई। आरोपी की पहचान अभिमन्यु के रूप में हुई है, जो कोची में कार्यरत एक रोबोटिक्स इंजीनियरिंग स्नातक है। आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उस पर आईपीसी की धारा 354C तक तांगछाक, 419 प्रतिरूपण और आईटी अधिनियम की धारा 66E के तहत मामला दर्ज किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका स्लम डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से चिटगुप्पा में 545 घर किए गए मंजूर। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने इस योजना का किया उद्घाटन। कर्नाटका के राज्य सरकार करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की घोषणा। कर्नाटका के नक्शे कदम पर कांग्रेस की तेलंगाना इकाई विधानसभा चुनाव के दावेदारों से लेगी 50,000 शुल्क। श्रमदान करके लोगों से भीख मंगवाने का पर्दाफाश, हैदराबाद में 23 भिखारी पकड़े गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सोनम वांगचुक से मुलाकात, युवाओं से करेंगे संवाद। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, गांव पर हथियारबंद बदमाशों का हमला, कुकी समुदाय के 3 लोगों की मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।